चलिए write down the next question. Complete the following table. Complete the following table where you are given with atomic number, mass number, neutrons, protons, electrons, and atomic species. चलिए बेटा, जो डैश है वो आपने कंप्लीट करनी है. Atomic number, mass number, neutrons, protons, electrons, and atomic species is given to you. चलिए सबसे पहले वाला लिखते हैं. Atomic number 9. That means Z is given to you. This is A. What will be the mass number? Neutrons are given to you. We know neutrons is equal to A minus Z. अभी आपने A निकालना है तो N plus Z will be A. Clear? ठीक है, तो N is 10 and Z is 9, so it will be 19. Protons. Protons are same as Z, so it will be 9. Protons are equal to electrons, so it will be also. What is the atomic species? Fluorine, right? So fluorine is the species which is having atomic number 9. Clear beta? हाँ जी, atom है ना, ठीक है. Done. Second, 1632. Now we have to find neutrons, which is A minus Z. So 32 minus 16. Protons are equal to Z. So it will be, right? Protons are equal to, so the atomic species is given to you, that is sulfur. Next, Z you have to find. You are given with mass number and protons. बोलिए इसका Z कितना होगा? Y12. Protons they constitute the atomic number. तो आपको protons कितने given है? Neutrons 24 minus 12. Electrons 12 and 12. And what is the species? Very good. Next, mass number given है और protons given है. Atomic number, neutrons 2 minus 1. Electrons, क्योंकि protons भी 1 है. Very good. Hydrogen. Now this case is bit different. ठीक है, Z कितना होगा? अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है. That means protons are not equal to electrons here. तो Z कितना आएगा? Z will be 1.
एनाटॉमिक स्पीशीज, हाइड्रोजन तो यहाँ लिखा है, विच इज हैविंग हाइड्रोजन वन इलेक्ट्रॉन. इट विल बी H. न्यूक्लियर चार्ज सेम है प्रोटॉन का, बट इसमें इलेक्ट्रॉन 0 हो गए, यानी कि हाइड्रोजन ने वो इलेक्ट्रॉन दे दिया, सो इट इज फॉर्मिंग H पॉजिटिव. क्लियर बेटा? कोई डाउट किसी को? एवरीथिंग क्लियर? चलिए राइट डाउन द नेक्स्ट वन. हाँ जी बेटा. फिर वो कंसेप्ट जो है वो एटम्स के लिए है, आयंस के लिए नहीं है. यहाँ पे वो आयन बन गया ना, जब तक ये एक एटम था तो दोनों सेम थे, जब ये आयन बन गया तो चेंज हो गया. तो जो हम कंसेप्ट कहते हैं दैट इज फॉर एटम्स. ठीक है बेटा? How can you obtain colored components from black ink? How can you obtain colored components from the ink? बोलिए. How can we obtain colored components from the black ink? Very good. So firstly we will follow which method? After evaporation we will follow chromatography. ध्यान से, इंक बोला मैंने, इंक नॉट डाई. इंक बोला है तो इवेपोरेशन है. पहले हम इवेपोरेशन से डाई ऑब्टेन करेंगे, देन यूजिंग द क्रोमेटोग्राफी वी विल ऑब्टेन द कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ द डाई. क्लियर हुआ? क्लियर है? Why copper sulfate solution in water does not show Tyndall effect, but mixture of water and milk shows? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन इन वाटर नहीं शो करता है, ठीक है, बट वाटर का और मिल्क का सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करता है. व्हाई? रेज योर हैंड्स बेटा. हाँ जी माधव. If we talk about copper sulfate solution in water, that is the true solution. The particles of the true solution, they are very small in size that they can't scatter the light, right? On the other hand, if we take the example of milk in water, that is a which solution? Colloidal solution. And colloidal solutions, they can show the Tyndall effect, right? Why? Because here the particle size is more. Okay. Now write down one assertion reasoning question. Molecular weight of SO2 is double. Assertion reasoning question. So assertion is given to you. That the molecular weight of SO2 is double to that of oxygen. The reason is given: 1 mole of SO2 contains double the number of molecules present in 1 mole of O2. Hanji. So you have to choose the options.
Either assertion and reasons they are true and R is the correct explanation, R is the incorrect explanation. Both are true. One is true, one is false. पहले में वो बात कर रहे हैं कि मॉलिक्यूलर वेट SO2 का डबल है देन दैट ऑफ ऑक्सीजन. कैलकुलेट करके देखो जरा. हाँ जी, कैलकुलेट करके देखो जरा. SO2 का डबल आता है ऑक्सीजन से. कितना है SO2 का बेटा? 64. 32 प्लस 32 64. ऑक्सीजन का 32. डबल हुआ कि नहीं? तो यानी कि फर्स्ट वाला तो ट्रू है. असर्शन इज ट्रू. रीजन, अब मोल के साथ वेट का रिलेशन तो है. मोल के साथ वेट का रिलेशन है तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये इसकी इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन है. समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पे वो वेट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मोल की बात कर रहे हैं. दोनों रिलेटेड है. मोल में हम वेट की बात करते हैं. ठीक है, तो पहली वाली पॉसिबिलिटी की इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो गई. ठीक है. 1 mole of SO2 it contains double the number of molecules present in 1 mole of O2. Now ये क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है? वो कह रहे हैं कि अगर मैं 1 मोल SO2 का लेती हूं तो उसमें डबल नंबर ऑफ आयंस होंगे जितने मैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में ले रही हूं. ट्रू और फॉल्स? रीजन ट्रू है कि फॉल्स है? कुछ तो बोलो. 1 mole of anything it contains 6.022 into 10⁻23 molecules. तो अगर मैं इसका 1 मोल ले रही हूँ तो उसमें भी 6.022 होंगे. अगर मैं इसका 1 मोल ले रही हूँ तो उसमें भी उतने ही होंगे. तो डबल तो नहीं होंगे. that means this is false and this is true. So assertion is true but the reason is false. Clear बेटा? ठीक है, तो हमने ऐसे देख के assertion रीजनिंग वाले क्वेश्चंस करने हैं. ठीक है, सारे पॉइंट्स को एक बार ही हमने देखना है कि ये इसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं. ओके, now write down the next question. Again there is a table. चलिए, draw the table. You are given with elements P, Q, R and S. Their protons are given to you. 19, 20, 17, 17. Their neutrons and electrons are given. Neutrons 21, 20, 18, 20. Electrons 19, 20, 17, 17. हाँ जी, लिख लिया बेटा? Now you have to answer these questions, right? So it can be of a case study question. ठीक है? The element R is MCQ question है आगे इसके 5, तो आपने उनका आंसर देना. The element R is metal, metalloid, non-metal और none. हम R की बात कर रहे हैं. You have to state whether this is metal, non-metal, metalloid और कुछ भी नहीं है ये. How non-metal? इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? प्रोटॉन्स भी 17 है, यानी कि Z हमें कितना दिया हुआ है? 287. कॉन्फ़िगरेशन लिख ली. 17 की कॉन्फ़िगरेशन लिख ली 287. अब मेटल नॉन मेटल कहाँ से पता चलेगा? मेटल दे लूज इलेक्ट्रॉन्स, नॉन मेटल दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स.
अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, इसको कितने और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो इट इज गोइंग टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो गेन करते हैं वो कौन होते हैं, सो दिस इज नॉन मैटर। हो गया क्लियर, क्लियर है बेटा। सेकेंड आंसर, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी। लास्ट बेटा जयदित्य, पी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी, 19 को स्प्लिट करो इस फॉर्म में, 102 first shell will have 2 electrons, second shell will have 8 और 2 10 हो गए। अब कितने बचे हैं, बोलिए बेटा। ओके, सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी। हाँ जी, अगेन दिस इज ऑल्सो मेटल, इट इज गोइंग टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम है ये, के पॉजिटिव। ठीक है बेटा, हाँ पोटाशियम कहा मैंने, के पॉजिटिव, पोटाशियम के पॉजिटिव, के पॉजिटिव का है, कैल्शियम नहीं कहा। हाँ जी बेटा कनिष्का, कनिष्का एनी डाउट। मैम वो आंसर, यस मैम वो आंसर दे रहा था। हाँ जी बेटा, मैम वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी थी आपको। 9 की, 19 की, सॉरी 19 की कॉन्फ़िगरेशन बेटा। यस, ओके, सो 19 वी आर गोइंग टू स्प्लिट एज, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, सेकंड शेल में, थर्ड शेल विल आल्सो हैव 8। ठीक है, 8 8 16 और 18 हो गए। ठीक है, एक को हमने आगे स्प्लिट कर दिया। यहाँ पर 9 नहीं लिख सकते हम, दिस विल बी रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इसमें 8 डाल के जो 1 है उसको आगे शिफ्ट कर देना। हाँ जी, KLMN, क्लियर कनिष्का। चलिए नेक्स्ट, which two elements form a pair of isobars? ओके, आइसोबार्स के लिए हमें क्या चाहिए, सेम मास नंबर। ठीक है, ए सेम होना चाहिए। अब सबका कैलकुलेट कर लेते हैं, 19 + 21, 20 + 20, 17 + 18, 17 + 20, किसका दोनों का सेम आया, पी एंड क्यू का। ठीक है, सो दे आर हैविंग सेम आइसोबार्स। ओके, सो आइसोबार्स दे आर हैविंग सेम ए, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को प्लस करोगे तो आपको ए मिल जाएगा। नेक्स्ट, विच इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर बताना है आपने, यानी कि छोटा सबसे कौन है, दोनों का सेम है, देन सो दिस इज द ऑर्डर। क्लियर बेटा। क्या क्या आप उसकी कह रहे हो, उसमें सब शेल्स इंक्लूड है, वो सब शेल्स का कंसेप्ट चलेगा वहाँ पे। आपने बस अभी तक 20 लर्न करने हैं, ये याद कर लो, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, फॉर द टाइम ये लर्न कर लो बस, क्योंकि जब आप +1 में जाओगे यू विल स्टडी द कंसेप्ट, वहाँ पे हम ऐसे नहीं लिखते हैं, 2n² लिखते हैं, SP के टर्म्स में लिखते हैं, 2s। ठीक है, S2 P6 उस फॉर्म्स में लिखते हैं। दिस वन इंक्रीजिंग ऑर्डर जो आप बोल रहे हैं ना कॉन्फ़िगरेशन, फिर हम ऐसे लिखते हैं, तो वो 19 आप ऐसे लिखोगे सब शेल्स की फॉर्म में। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, यानी कि सबसे छोटा देखना है। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे छोटा है, Z प्रोटॉन्स देंगे, इन दोनों का सेम है, R = S, फिर किसका ज़्यादा, 19 या 20, 19। ठीक है, फिर 20। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, कौन से आइसोटोप्स? RS है। चलिए, राइट डाउन व्हाट इज एन ऑक्टेट, हाउ डू एलिमेंट्स अटेन एन ऑक्टेट। व्हाट इज ऑक्टेट, हाउ डू एलिमेंट्स अटेन एन ऑक्टेट। व्हाट इज ऑक्टेट बेटा? हाँ जी, ऑक्टेट क्या होता है? So an outermost shell must have 8 electrons. This is called octet. ठीक है, 8 होना लास्ट शेल में, like this also and like this also. ठीक है, तो that we called as octet. ठीक है, now how do elements they attain an octet? कैसे 8 इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं वो या पूरे करते हैं अपनी शेल्स में? गेनिंग एंड लूजिंग। ठीक है, तो विद द गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द एटम्स दे एक्वायर ऑक्टेट। ठीक है, शेयरिंग, कार्बन के केस में शेयरिंग होती है। मेक अ स्कीमेटिक एटॉमिक स्ट्रक्चर्स ऑफ मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस एंड ऑल्सो गिव देयर वैलेंसेस। इलेक्ट्रॉनिक शेल्स बनाओ मैग्नीशियम और फॉस्फोरस की और उसकी वैलेंसेस बताओ। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 को स्प्लिट करेंगे कैसे? 2 8। बेटा सेंटर में न्यूक्लियस जरूर शो किया करो, तो 3 शेल्स आएंगी। अभी भी देख लो कैसे रिप्रेजेंट करना है शेल्स को। बिल्कुल भी ठीक आपने रिप्रेजेंट नहीं किया था। एटम लिखो, उसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2। सेंटर में न्यूक्लियस बनाओ और सिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करो। 1 3 4 5 6 7 एंड सॉरी ये फर्स्ट शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। देन 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब लास्ट शेल में कितने चाहिए? ठीक है, सो राइट डाउन हियर के एल एंड एम शेल 2 8 2। ठीक है, मैग्नीशियम हैज Z12। क्लियर है ना? मैग्नीशियम की बात कर रही हूं मैं, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, उसकी शेल्स को हमने कैसे स्प्लिट किया है? 2 8 2। ये शेल अरेंजमेंट लिख दिया। सब कुछ डिपिक्ट हो रहा है ना शेल अरेंजमेंट के साथ, तो आप ऐसे क्यों नहीं लिखते हो? फिर सीधी शेल्स बनाई हुई हैं, कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं, कोई एलिमेंट नहीं लिखा। किसकी बात कर रहे हैं हम? पेपर्स में ऐसे करते हो आप। नाउ ऑल्सो राइट डाउन फॉर द फॉस्फोरस। Phosphorus is having Z15। हाँ जी विनीत, how you are going to split 15? क्या 6 कैसे आ जाएगा बेटा? हाँ जी सहज, बेटा इतना इजी है, उसको भी आप इतना टाइम लगा रहे हो। Now let's draw the shell arrangement.
सेंटर में न्यूक्लियस, अगेन इसकी भी 3 शेल्स हैं, 1 2 and 3, right? So first shell is having how many electrons? Second shell, eight electrons. Then 1 2 3 4 and 5, right? Now next you are asked about their valencies. तो वैलेंसी भी हमें यहाँ से पता चल जाएगी. वैलेंसी कैसे निकालते हैं? फॉर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? फॉर द इलेक्ट्रॉन्स 5 6 7 and 8, वैलेंसी इज 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अब कितने हैं ये? 2 है, तो वैलेंसी विल बी इक्वल टू 2. For 1 2 3 4 electrons, valency will be equal to the number of electrons. For the electrons 5 6 7 and 8, valency will be equal to 8 minus valence electrons. So it is having valence electrons 5. So that means here the valency will be 8 minus 5, that is going to give you 3. Clear beta? Any doubt to anyone? हाँ जी, online students clear? Clear beta? So next write down an outermost shell. नहीं, 1 मिनट रुको. नेक्स्ट करते हैं. Write down one assertion reasoning question. Magnesium ion and chlorine ion, magnesium ion and chlorine ion combine to form a compound having chemical formula MgCl2. Okay, so what they are saying in the assertion that magnesium and chlorine, they are combining to give you a compound that is magnesium chloride, MgCl2. Magnesium ion and chlorine ion contain +1 and -2 charges respectively. Magnesium ion and chlorine ion, they contain -1 +1, sorry, they contain +1 and -2 charges. हाँ जी, बताइए. A is true, R is false. ठीक है जी. So assertion is true but the reason is false, क्योंकि इसकी +2 है और इसकी -1 है. पता है ना? ठीक है. Next write down which isotope of uranium is used as nuclear fuel. Which isotope of uranium is used as nuclear fuel? कौन कौन से 2 आइसोटोप्स होते हैं यूरेनियम के? यूरेनियम 235 एंड 238. ठीक है, तो इसमें से हम कौन सा यूज करेंगे? 35. यूरेनियम 235 इज यूज्ड इन द न्यूक्लियर फ्यूल्स. हाँ जी, आप न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज कर सकते हो उसको. एज न्यूक्लियर रिएक्टर काम होता है जब हमने किसी की एलिमेंट के साथ उसकी रिएक्शन करवानी होती है. ठीक है, ये फ्यूल की बात कर रहे हैं हम. न्यूक्लियर फ्यूल है तो 235, न्यूक्लियर रिएक्टर है तो 238.
An atom has 2 electrons in the K shell and 4 electrons in the L shell. What is the atomic number of these elements? Write down. An element X has valency 2 and element X has valency 2. What is the formula of its oxide? An element X has valency 2. What is the formula of its oxide? हाँ जी, क्या फॉर्मूला होगा उसके ऑक्साइड का? राइट इसकी वैलेंसी कितनी है? इसकी वैलेंसी, ठीक है, तो जब आप इसको क्रिस क्रॉस करेंगे तो H2O2 2 कॉमन XO. What will be the number of molecules? What will be the number of molecules of sulfur? What will be the number of molecules of sulfur S8 present in 16 gram of solid sulfur? Present in 16 gram of solid sulfur. ये किसका न्यूमेरिकल है? मोल कंसेप्ट का. टेबल बनाओ पहले, ऊपर टेबल बनाइए. फाइंड आउट व्हाट इज नोन टू यू और क्या हमने निकालना है. सो दिस इज मोल, दिस इज नंबर, हेयर मास. ठीक है, क्या कहा है आपने? व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. तो हमने ये फाइंड करना है. व्हाट इज गिवन टू यू? 16 gram of sulfur. So this is given. Move from known to unknown. Right? Move from known to unknown. तो ये 16 given है. Divided by किससे डिवाइड करेंगे? मोलर मास के साथ. तो S8 का मोलर मास निकाल लो पहले. What will be the molar mass of S8? एक सल्फर का कितना है? 32 into 8 करो. It will be 250. ठीक है जी. फिर हमने इधर को शिफ्ट करना है अब. So this arrow is for किसके साथ? एवोगैड्रो नंबर के साथ. Just a single table and all your numericals they will be solved. ठीक है, आंसर निकालिए. फाइंड आउट द आंसर. हाँ जी, आंसर निकालिए बेटा. जीरो 0.3 इंटू 10⁻². 22 कैसे आ जाएगा फिर? फोर के टेबल पे इसकी कटिंग कर दो. 4 4 16, 4 6 हो जाता है, कट हो जाता है. वेट, 4 6 24. आगे उसको कर लो, फिर 6 को डिवाइड कर लो 16 के साथ. जीरो 0.376 इंटू 10⁻23. पॉइंट एक आगे शिफ्ट करना है. इंटू 10⁻22. क्या पूछे हैं? मॉलिक्यूल्स पूछे हैं. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. क्लियर बेटा?
How many atoms are present in one molecule of ozone? आंसर दे के जाओ मेरे को. How many molecules are present in 1 mole of